Hello, Standard 4th. Welcome in EVS lecture. Previous lecture we have discussed up to this, right? One little boy who went to Razia's madam house, and the madam was reading newspaper and told Deepak's mother that throw away all the water of the yesterday because it's dirty. Now there are some questions over here. Why was Razia worried when she read the newspaper? कि रजिया को चिंता क्यों हुई? So because she read that in their area the gutter water is mixed with the drinking water pipeline, and so that so many people has sick with diarrhea and vomiting. So she was worried. Razia asked that all the water that was filled in previous days should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? So yes, we can use this kind of water for cleaning purpose, for washing clothes, for watering plants, etc. In what way did she plan to clean the water? She planned to clean the water by boiling it. Do you know of different way to clean the water? Describe them. Yes, I know the different kind of way to clean water. First one is as usual to boil it, then to strain it, then we can use water filter, right? Uh, then we can put वो फिटकड़ी आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? So we can put it in our tanks so that it clean up the water. Now next, suppose Razia had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it. What could have happened? कि सपोज रजिया ने ये न्यूज़पेपर्स रीड ही नहीं किया हो और सबने पानी पिया होता तो क्या होता बॉईल किए बगैर? सो दे कुड बी सफ़र विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग, है ना? शायद उनको भी डायरिया और वॉमिटिंग हो जाता. नाउ where Deepak lives, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Razia's house, water come all day in the tap. Why is this? Because there is a difference between two types of localities. Okay, one is a rich person's area and second one is poor person's area, where the only municipality taps are available. So they have to, and there are limited numbers of taps over there. कि भाई दीपक रहता है वहाँ, पुअर लोग रहते हैं वहाँ, म्यूनिसिपालिटी का जो नल है और वो भी एक दो ही नल होते हैं, उसमें पूरे एरिया के लोग पानी भरने आते हैं तो प्रॉब्लम होता है. जबकि जो रिच लोग रहते हैं वहाँ पर तो अंडरग्राउंड ओवरहेड टैंक्स बने होते हैं कि जिनमें वो लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं और फिर पूरा दिन यूज़ करते हैं. Razia read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news? कि भाई रजिया ने जो न्यूज़पेपर में रीड किया पानी के बारे में, आपने कभी ऐसा कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ रीड किया है? तो जनरली वी आर गोइंग टू रीड इन राजकोट शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि भाई समर आ रही है तो बार बार ऐसे न्यूज़ आते हैं कि आज इस एरिया में पानी क्लोज होगा एंड इस एरिया को पानी नहीं दिया जाएगा, अभी से अल्टरनेटिव आएगा ना, ये सब. बाकी डर्टी वाटर की तो अभी तक न्यूज़ आई हैव नेवर रीड. नाउ ओवर हियर, do and discuss. Look through the newspaper on the last 1 month. Look for all news items related to water. Cut them out. Stick all the cutting together on a big paper to make a big collage. Talk about what you have collected. Discuss in the class. कि भाई पिछले 1 महीने के न्यूज़पेपर देखो,
उसमें पानी के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको कट करो और एक बड़े से पेपर के ऊपर उसको पेस्ट करो और कोलाज बनाओ और फिर क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करना है। तो ये तो क्लास एक्टिविटी है। ओके, इफ़ वी विल मीट इन द स्कूल देन वी विल ट्राई टू डू दिस। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? हाउ डिड यू फील? तो जिसको होता है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन वी हैव रीड इट कि जिसको होता है उनके बार बार उसको वॉमिटिंग और लेटरिन जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है एंड दे आर फीलिंग वेरी वीकनेस, वीक फील करते हैं वो लोग। We lose a lot of water from our body. This can be dangerous if we do not take care. It is important that we make up for the water that we lose from our body. कि भाई ये जो डायरिया और वोमिटिंग होता है उसमें हमारे शरीर में से बहुत सारा पानी निकल जाता है, जो कि कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है अगर हम अपने आप की केयर ना करें, ध्यान ना रखें। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में जो पानी निकल जाता है उसको मेंटेन किया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स एंड वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर। कि जब आपको डायरिया और वॉमिटिंग हो रहा है तो आपको ज़्यादा पानी पीना है, रोज़ पीते हो उससे ज़्यादा, और एक गिलास में थोड़ा सा नमक और शुगर मिलाकर पीते रहना है। फॉर दिस मिक्स 1 tablespoon sugar and a pinch of salt in 1 glass of boiled and cooled water. Taste it to make sure that there is no too much salt. The water should not taste more salty than our tears. कि भाई उसके लिए आपको 1 गिलास बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच शुगर डालनी है, 1 चुटकी भर नमक डालना है और उसको हिलाकर उसका शरबत जैसा बना लाना है। और ख्याल रखना है कि इसमें सॉल्ट की मात्रा उतनी ही हो जितने हमारे आंसू में सॉल्ट की मात्रा होती है। भाई आंसू तो कोई टेस्ट करने नहीं जाता है, लेकिन हमारे आंसू खारे होते हैं, थोड़े सॉल्टी होते हैं, तो हमारा पानी भी थोड़ा सॉल्टी होना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में सॉल्ट का भी जो क्वांटिटी है वो कायम रहे। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. Light food must be taken. Babies should continue to take their mother's milk as this is good for them. कि जिसको डायरिया वॉमिटिंग हुआ है उसको इस तरह से पानी है वो एक साथ नहीं पी लेना है, छोटी छोटी सिप में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना है कंटिन्यूअस। और हल्का खाना जैसे दाल चावल है, खिचड़ी है, ऐसा खाना खाना है। और छोटे बच्चे हैं जो कि अभी दूध पर जी रहे हैं, उनको कंटिन्यूअस अपनी मामा का दूध पीते रहना है, जो उनके लिए अच्छा होता है। It is also necessary to take some medicine. They can also be homemade remedies. कि इस समय आप कुछ घर में बनी हुई दवाइयाँ भी ले सकते हो। If the diarrhea does not stop, it is important to get the advice of a doctor. अगर डायरिया बंद नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नाउ वाटर सर्वे इन स्कूल, कि भाई एक स्कूल में सर्वे करना है, उसके बारे में है। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ये क्लास की एक्टिविटी है, सो वी कांट डू येट। ओके, कि इसमें बच्चों के 3 ग्रुप बनाने हैं। 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। एक ग्रुप है वो स्कूल में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, कहाँ से पानी आता है, किस में रखा जाता है, ये सब की चीज़ों की इंक्वायरी करेगा। द सेकंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल। दूसरा ग्रुप स्कूल में टॉयलेट की क्या अरेंजमेंट है वो ढूंढेगा।
थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास। तीसरा ग्रुप है वो बच्चे क्लास में कौन सी बीमारी से ग्रस्त है, कौन सी बीमारी उनको ज़्यादा होती है उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे। द क्वेश्चंस गिवन बिलो विल हेल्प द ग्रुप टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इन ग्रुपों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।